हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में. Now we know that Indo-Pacific area has been a growing space of geopolitical and geostrategic competition. And as the players in this region become even more multivariate, right? तो पहले क्या होता था? पहले usually they were dominated by a handful of great powers, right? So for example, during the era of ब्रिटिश हेजेमनी, जब कॉलोनियल इंपीरियल एरा उनका चल रहा था, तो ब्रिटेन एक मेजर पावर था. ऑब्वियसली देयर वर आल्सो सर्टेन अदर पावर्स कंटेंडिंग, राइट? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया. अमेरिकन हेजेमनी के टाइम पे यहाँ पे यूएस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था. हाउएवर ओवर टाइम जैसे जैसे मल्टीपोलैरिटी की तरफ ये वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स active within this region also have grown multifold, right? So now you also have middle powers like Australia, like Japan, right, जो कि interested है. You have revisionist powers like China, जो कि बहुत interested है. You have regional powers like India, जो कि again यहाँ पे अपना influence जो है से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, apart from the existing great powers जो कि already इस region के अंदर बहुत ज़्यादा active थी. And apart from that, obviously one cannot forget the fact that small island countries जो कि populate करते हैं इस पूरे region को, right? For the longest time they had been dominated by various powers, but now as they grow more assertive and as they understand their own strategic location and क्या value ये hold करते हैं, they have also learned how to play one power against another to maximize benefit for themselves, right? And इसी पूरे इस churn के अंदर, right, especially when we see important resources in the area, as we see the rise of non-traditional security threats in the area, right? So freedom of navigation को लेके, trade को लेके, resources को लेके, climate change को लेके, वैसे वैसे how to handle this maritime zone जो है वो important बनता जा रहा है, right? Very importantly, again, when we do look at this entire maritime zone, Alfred Mahan का जो idea था of the importance of naval power and how maritime dominance is what will possibly ascertain the next hegemonic power in the world, वो भी influential होता जा रहा है, right? तो इसी context के अंदर जानना ज़रूरी है कि ये महासागर विजन जो है इंडिया की क्या है, and especially given the elevated partnership that we are witnessing between India and Mauritius, how does that fit into this context? Right now, again in this lecture there will be two components जो कि दोनों ही equally ज़रूरी है. पहला कंपोनेंट ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, एलिवेटेड रिलेशनशिप, क्या अग्रीमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, राइट, जियोग्राफिकल एरियाज, मॉरिशस के अंदर सर्टेन अटोल्स एक्सेट्रा जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि ना ही सिर्फ ऑप्शनल बल्कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बिकॉज व्हेन सर्टेन थिंग्स आर इन न्यूज़ यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम एज वेल. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली द PSIR एंड इवन आप GS के IR के अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये वाला जो कॉन्टेंट है जो मेंस का एनालिटिकल कॉन्टेंट है, राइट, दिस विल बी द सेकेंड पार्ट, राइट? सो बोथ ऑफ दीज विल बी कवर्ड. नाउ obviously this entire Mahasagar vision has been in news because of the recent visit of Prime Minister Modi to Mauritius. Now you will again remember that early in his tenure also 2015 में nearly 28 years बाद इंडिया के जो एक प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया था आइलैंड कंट्रीज लाइक मॉरिशस, श्रीलंका, सेशलीज को. एंड in fact this is what had also cemented the growing importance of this region, this Indo-Pacific region in recent times. Now, in 2025, nearly 10 years later after that visit, India and Mauritius ने अपने relationship को और elevate कर दिया है to now become an enhanced strategic partnership. And in view of the same 8 agreements जो है covering various sectors,
लोकल करेंसीज के अंदर एक्सचेंज, MSMEs हो गए, ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स हो गया, वाइट शिपिंग डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो गई, इन सब के ऊपर जो है लगभग 8 अग्रीमेंट्स जो है उन्होंने साइन किए. Now, what is important is that apart from these agreements, these concrete agreements, the relationship has also sought to shape a larger strategic vision in the area, right? A larger strategic vision of the area as well as the corresponding regions as well, जिसको term किया गया है as महासागर, right? Again, महासागर क्या है? Joining another range of acronyms. We know this for a fact, right? That the Modi government comes up with really, eye-catching acronyms. And ये आपके लिए भी important हो जाता है इनको जानना कि क्या है कि उनके ऊपर भी कई बार questions आ सकते हैं. महासागर stands for mutual and holistic advancement of security and growth across regions. Now this again is very important. क्या important है? यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन की बात नहीं की है, सिर्फ अपने बैकयार्ड इंडियन ओशन की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने क्या कहा है? अक्रॉस रीजन्स. सो यू हैव टू लुक एट द डीपर मीनिंग बिहाइंड ऑल्सो, दैट मे बी इंडिया इज नाउ सेइंग दैट नॉट जस्ट एज अ रीजनल पावर, I want to be able to contribute as a larger global power as well, right? Already India के backyard में India witnesses a number of extra regional powers being active, right? European powers, US तो है ही है, right? ये सब यहाँ पे active है. तो इंडिया फिर बाकी रीजन्स के अंदर एक्टिव क्यों नहीं हो सकता, राइट? वन ऑफ द मार्क्स ऑफ बीइंग अ ग्लोबल पावर, अ ग्रेट पावर, अ हेजेमोनिक पावर इज कि आपका जो बोलबाला है वो सिर्फ आपके रीजन में नहीं बट अक्रॉस रीजन्स होता है. एंड अगेन दिस डज नॉट कोइंसाइड विद बीइंग अ बुलिंग पावर. आपका योगदान, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, यू एज एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर who can make decisions, who can influence decisions, right? This is not just limited to your own backyard, but spans across regions. And that is exactly the vision that Mahasagar also holds, right? So building already on their pre-existing vision जो थी, right? जो pre-existing सागर पॉलिसी थी. And very importantly, मैंने बताया था कि 2015 के अंदर 28 सालों के बाद विजिट किया था, right? तो जिस तरह से जापानीज जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, द लेट शिंजो आबे, वो आए थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था एंड पहली बार द आइडिया ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आगे रखा था. उसी तरह से सागर पॉलिसी का एवोल्यूशन की जब बात करते हैं, दिस वाज व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी had visited Mauritius 10 years ago in 2015. ठीक है, तो वहां पे दिस आइडिया ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट? इन द रीजन, सो इट वाज वेरी रीजन स्पेसिफिक, राइट? बेसिकली इंडो पैसिफिक एंड मोर स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन, राइट? जो IOR रीजन है, इंडियन ओशन रीजन, ये स्पेसिफिकली उस पे फोकस कर रहा था. IOR वाले जो लिटोरल स्टेट्स है उनके साथ एक मोर घनिष्ठ, एक डीपर रिलेशनशिप सेट आउट करके. नाउ वी सी दिस पॉलिसी फर्दर मैच्योरिंग, दैट नॉट जस्ट restricting ourselves to the Indian Ocean region, but going beyond that to the larger Indo-Pacific sphere, and even beyond that is what is envisioned within the Mahasagar doctrine. So you also have to see the maturing of this policy from Sagar to Mahasagar. ठीक है, तो यहाँ पे again however इंडिया का जो एक nuanced support है, particularly for inclusive and free trade, for capacity building, for sustainable development and for mutual security, ये महासागर पॉलिसी का भी हिस्सा है. Very importantly, this can also be seen as an extended measure to build on what India along with Japan, Australia has always found concrete belief in, that is free and open Indian Ocean, right? And this especially becomes important in view of the growing
चाइनीज इंसर्कलमेंट, राइट। तो इनके वेरियस पॉलिसीज के थ्रू, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आइडिया हो, हम ऑलरेडी देख रहे हैं डिफरेंट बेसिस बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो आइलैंड कंट्रीज इन द रीजन है, ये पर्टिकुलरली पॉन्स बन गए हैं in the great Chinese game in the Indo-Pacific region, right? So you see China's growing influence, whether it comes to developing bases and other maritime infrastructure, चाहे वो श्रीलंका की wooing की बात हो, right? Even though Sri Lanka has realized and the kind of debt policy and debt trap games that they play, but still Maldives जो है, Maldives की जो एक growing closeness है and the kind of fissures that it has been having with India vis-a-vis a growing closeness with China, जिबूती के अंदर जो वो नेवल चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर, all of these can be seen as a way in which the Chinese presence is growing day by day so as to make it a regional and an influential power in the Indian Ocean region as well. So that is why India के ये जो tactics है, India की जो vision of महासागर है, इस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती है। Now the idea comes that how and why महासागर के लिए मॉरिशस इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ व्हाइल इंडिया एंजॉयज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, एक पेनिनसुला है रीचिंग आउट इनटू द इंडियन ओशन रीजन, बट उसके बाद भी ये जो आइलैंड स्टेट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है in being able to ensure a deep presence and being able to have sufficient information about the Indian Ocean region. एंड मॉरिशस जो कि अफ्रीका का एक हिस्सा और एक सेंट्रल पोजीशन जो है इंजॉय करता है इन द इंडियन ओशन रीजन, therefore becomes very important, right? So closer to Africa, right? एक deeper Indian Ocean के अंदर है, while Maldives may be closer to India, but the importance is that while Maldives can play China card more effectively, Mauritius has happened to be a very reliable friend to India, and this is exactly what C. Uday Bhaskar also in his commentary states. He says that you have to look at the fact that how Mauritius was a pole when India was devising the Sagar policy and the kind of success and progress that it enjoyed with respect to this policy as well. And therefore, it was imperative that when it comes to developing a larger Mahasagar policy, Mauritius would have to be an important player here also. Harsh Pant and Samir Bhattacharya again in their ORF का article build on this, right? And वे इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं जब आप इंडियन ओशन रीजन को देखते हैं तो आप इसको डिफरेंट स्फेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया जो है एक वो सेंट्रल स्फेयर जो है, सेंट्रल टू ईस्टर्न स्फेयर, उसके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। सेंट्रल बिकॉज ऑफ इट्स ओन पेनिनसुलर रीजन एंड देन ईस्टर्न ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पे अगेन ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। It is the more western part of the Indian Ocean region where India needs more support. And when you look at Mauritius' geographical location in the Western Indian Ocean, here therefore it becomes a key partner to help India secure its strategic interests and very importantly regional interests, ताकि इस पूरे रीजन की पीस सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। And that is why Mauritius also in this Mahasagar vision has come to acquire an important role. Now, this relationship with Mauritius has obviously been built over the years, right? It is something that has thrived across years, right? There have been moments of lull where India wasn't seen as giving enough importance to the small island countries, right? So, जब हम मंडला थ्योरी को इमेजिन करते हैं, है ना, when we look at हमारे नेबर्स, व्हेन वी लुक एट द नेबर्स ऑफ नेबर्स एंड किन के साथ हमने बना के रखनी है, ऑफन मंडल थ्योरी के अंदर भी ना एक बहुत ही टेरिटोरियल लैंड बेस्ड विजन होती है कि जब हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करते हैं मोस्टली वी इमेजिन टेरिटोरियल और लैंड कंट्रीज। ऑफन जो ये आइलैंड कंट्रीज है दे एंड अप बीइंग इग्नोर्ड। However, in this new age Mandal theory, we have come to realize how important these strategic friendships are with small island countries like Mauritius.
Now, Mauritius, despite being a small island country which is dependent on tourism, right, it is seen as one of the most prosperous examples of democracies in the developing world and within small island countries as well. And what is even more, इंडिया के साथ इनका एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप मोर और लेस रहा है. And that is also further reinforced by the fact that there are such deep-seated people-to-people and cultural ties. So when you look at the Mauritius population, over 70% of the Mauritians in fact belong or are of Indian descent. So during the entire setting up of various estates, जो लार्ज स्केल फार्मिंग हो रही थी, कमर्शियल फार्मिंग हो रही थी, राइट, वेरियस जो है एस्टेट्स कॉफ़ी के वेरियस प्लांटेशन सेटअप किए जा रहे थे, हमें पता है कि कॉलोनियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रांसफ़र की थी इंडिया से, राइट. सो नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी हैड एंडेड अप एमिग्रेटिंग टू दीज आइलैंड स्टेट्स, राइट. और इन्हीं में से एक ऐसा आइलैंड स्टेट है मॉरिशस का. तो यहाँ पे शुगर केन फार्मिंग एक्सेट्रा जो है बहुत प्रोमिनेंटली होती है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस ऑल्सो. एंड सो व्हेन यू गो मीट द पॉपुलेशन देयर, यू कैन इजीली एंड डिस्टिंक्टली मेक आउट द काइंड ऑफ मिक्स्ड कल्चर जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज इमिग्रेंट पॉपुलेशंस. तो भोजपुरी का आपको, बिहार का, बंगाल का, ईस्टर्न यूपी का आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इवन इन प्रेजेंट डे generations, right? Now, in recent years also in various avenues, India has proved to be a very credible partner, right? तो for example, जब हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड्स की, वहाँ पे इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आई है. 2017 में इन्होंने एक इंटरसेप्टर बोट जो है, राइट, वो इक्विपमेंट भी जो है लेंड किया था मॉरिशस की स्पोर्ट जो कोस्टल गार्ड है उनको, राइट. देन सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंटली जब भी, राइट, क्योंकि एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है तो यहाँ पे वेरियस और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती रहती है. तो बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, फॉर इट्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑल्सो कोई बहुत बड़ी आर्मी एक्सेट्रा तो है नहीं. सो दे इन फैक्ट बिलीव इन मल्टीलेटरल हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. दे बिलीव इन स्ट्रेंथ इन नंबर्स. सो इन फैक्ट 2011 से जो शुरू हुई थी एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग की तरह विच इज कॉल्ड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, राइट. इनिशियली जो है श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स के थ्रू ये शुरू हुई थी एंड नाउ इट हैज कम टू एक्सपैंड इवन मॉरिशस, राइट. मॉरिशस भी इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया है, राइट. तो ये जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई इन 2020, जिसके थ्रू जो है रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन के ऊपर काम किया जा रहा है. Then when it comes to humanitarian and disaster relief response also, because again a number of these countries are prone to increased environmental risks, damages as well as disasters. So April 2020 या 21 के अंदर ये हुआ था, there was a massive oil spill जो कि मॉरिशस के सराउंडिंग जितने भी मैरिटाइम एंड इन्वायरमेंटली वल्नरेबल फ्रजाइल एरियाज थे उनको डैमेज कर सकता था. तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू एक्चुअली हेल्प मॉरिशस डील विद दिस oil spill. Then even during the COVID pandemic, India का जो वैक्सीन मैत्री था, right, this proved to be a great diplomatic tool in building these relationships, right. So a number lakhs and lakhs of doses of both Covishield and Covaxin दोनों के दोनों जो है मॉरिशस को भेजे गए थे उनको वैक्सीन जो स्प्रेड है उसके अंदर हेल्प करने के लिए टू कॉम्बैट द COVID-19 pandemic. Then again 2024 के दौरान when the massive cyclone Chido had hit the country, India was also the first responder when it came to humanitarian assistance and disaster relief provisions in the country of Mauritius. Now, not just in terms of these areas, but when it comes to even trade, right? While India does not have the deep pockets like say maybe China does, जिनके साथ भी इन्होंने various trade agreements sign किए हुए हैं, but India and Mauritius have also continuously looked to enhance their economic and trade relations, right? Because again, in small island countries की economies भी जो है बहुत छोटी होती हैं, राइट. किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है. Therefore, they are always looking for mutual partners so as to ensure economic security for themselves as well.
इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन 2021, which was the first trade agreement that India had signed with any African country. Then even in infrastructural development, particularly in areas that will genuinely contribute to the well-being of the people of Mauritius and to their overall development, वहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, राइट. सो मॉरिशस की जो नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी, देन इनकी जो मेट्रो एक्सप्रेस है, ये मेट्रो का इनका मैप है, राइट. सो विच इज़ ऑब्वियसली इन्वायरमेंटली बेटर कॉन्शियस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हुए वहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है. हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स, सोशल हाउसिंग यूनिट्स, इन सब के अंदर जो है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. And in response also, Harshpan says that it's not just India that has been an all-weather ally, it's not just India that has been a supportive partner to Mauritius, but in fact, Harshpan says where the credit is due, you have to give it to them. Unlike a number of other small island countries, right, the kind of diplomatic deftness, the kind of shrewdness, the kind of balancing act that Mauritius has been able to play, especially when we look at the current जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन चंद्र रामगुलम, राइट, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से चाइना एंड इंडिया को हैंडल किया है. And again, by inviting Prime Minister Modi in March 2025 to be a part of their national celebrations, honoring him with various awards, right, this reinforces the kind of importance that Mauritius tends to give to India, right? So this entire aspect, this idea is very critical to develop a deep relationship between the. Now, this already existing relationship जो है, the present 2025 visit tends to expand more on that, right? अब इसी दौरान एक नया joint vision document जो है दोनों के अंदर शेयर किया गया, as a part of which 8 memorandum of understandings या जो agreements हैं उन्हें साइन किया गया. One of the most important ones are between the Indian Navy and the Mauritius Police Force, right, जिसके through maritime cooperation, awareness and data sharing जो है उस पर काम किया जाएगा, particularly by sharing white shipping information. A lot of you may not know कि white shipping actually होता क्या है. अब हमें पता है जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे न्यूमरस जो है चैनल्स हैं, न्यूमरस जो है लेन्स ऑफ नेविगेशन है, जहाँ से वर्ल्ड का एंड रीजन का बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो पास करता है. बेसिकली वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी इन चैनल्स के थ्रू, इन एरियाज के थ्रू कमर्शियल जो भी नॉन, आप कोई भी वेसल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स है, किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो की जाती है. इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयरिंग जो इस एरिया के अंदर जो है नेविगेट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी के बारे में, टू एनहांस मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, सो दैट दे नो कि अच्छा ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये इस पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ये कंप्लीटली सेफ है, उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है पायरेसी से, ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि उनके ऊपर कोई जो है गलत काम नहीं हो रहा है. तो इसके थ्रू मोर सिक्योर एंड ओपन रीजन जो है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर की जा सके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर की जा सके, दिस इज अ पार्ट ऑफ वाइट शिपिंग information sharing system, right? So this is exactly what will be carried forward. Then इसके अलावा जो मॉरिशस की मिनिस्ट्री है, उनके साथ जो इंडिया का इनक्वा है, राइट, जो हमारा नेशनल सेंटर है फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, राइट, उन्होंने कोलैबोरेट किया है लार्जली और मैरिटाइम सर्वेलेंस, हाइड्रोग्राफिक डेटा इनकी सर्विस करने के अंदर भी एक अग्रीमेंट साइन किया है. साथ ही में इन्होंने बोला कि मॉरिशस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको सिक्योर एंड प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम और कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे, एंड यहाँ पे और ज़्यादा इन्हांस. नाउ this particular area was a matter of huge debate also till some time, right, which seems to have been resolved, and this is with respect to a particular island of Mauritius which is the Agalega, राइट, जहाँ पे एक रनवे एंड जेटी जो है ये बनाई गई है, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ये जो है जो आगलेगा आइलैंड्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंट्रल पोजीशन, राइट. सो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मॉरिशस यहाँ पे रहा,
यहाँ पे दिएगो गार्सिया भी है, राइट। सो जो ये पूरा एरिया है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। अजम्पशन हो गया, सेशलीज हो गया, मालदीव्स हो गया, चैगोस यहाँ पे है, राइट। तो ये सारे जो है क्रिटिकल एरियाज हैं, इनफैक्ट इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम देख सकते हैं मैडागास्कर में इंडिया ने मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए एक लिस्निंग पोस्ट बनाई हुई है। देन सेशलीज के साथ ऑलरेडी एक MOU जो है एग्जिस्ट करता है एयर स्ट्रिप एंड डॉकिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। सिमिलरली मॉरिशस के साथ भी जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आगलेगा आइलैंड्स के अंदर एयर स्ट्रिप, डॉकिंग फैसिलिटी, जेटी एक्सेट्रा की यूटिलाइजेशन के लिए अग्रीमेंट। इसके अलावा मॉरिशस जो है इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है एक्यूजेशंस आते हैं ना। इसी के चलते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साइन किया एग्रीमेंट विद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ऑफ मॉरिशस टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये अग्रीमेंट्स जो हैं कई बार गिवन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो सडनली आ रहे हैं आपको याद रख लेने चाहिए कि ये अग्रीमेंट्स जो है हुए हैं, जस्ट इन केस अ क्वेश्चन ऑन देम कम्स। समटाइम्स आपके GS मेंस में तो भी जो है एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ऑप्शन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं साइन, राइट। तो इनके बारे में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। Then very importantly, another agreement has also been signed to promote use of national currencies, both for current as well as capital account transactions। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी इंडिया एंड मॉरिशस में वो सेटल की जा सके इनकी लोकल करेंसीज में रादर देन द US डॉलर। देन इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्रेडिट फैसिलिटी को फॉरवर्ड किया है टू द मॉरिशस सेंट्रल वाटर अथॉरिटी। अगेन बीइंग अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, वाटर सिक्योरिटी इज ऑफ utmost रिक्वायरमेंट, स्पेशली गिवन द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इनका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत नियरली 100 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन जो है उसे बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा टू इंश्योर बेटर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सप्लाई। उसके लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है एक्सटेंड की गई है। तब MSME के एरियाज में भी टू इनकरेज सेटिंग अप ऑफ न्यू MSMEs टू प्रोवाइड देम एन मोर इनहैंस्ड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स, इसके लिए भी एक अग्रीमेंट हुआ है, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है द आइडिया ऑफ ग्वांगजी डिप्लोमेसी, जिसको चाइना बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, राइट। तो चाइना से फॉर एग्जांपल दे हैड रियलाइज्ड, एंड दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू फॉर इंडिया आल्सो, राइट, दैट इन द पास्ट दैट वी हैव सपोर्टेड अ नंबर ऑफ anti-colonial struggles for national independence, but how do you build on that? Now, one of the ways that China had understood building on that was via Guangzhou diplomacy, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर क्या किया है, सेंटर्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनको सेटअप कर दिया है फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स, फॉर डिप्लोमैट्स, फॉर ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग इन दीज कंट्रीज, जिसके कारण लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर ब्यूरोक्रेसी, विद देयर पॉलिटिकल क्लास एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। नाउ इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग अ लीव आउट ऑफ दिस ग्वांगजाई डिप्लोमेसी एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम इन मॉरिशस। एंड यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं, एक नया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सेंटर जो कि ट्रेन करेगा मॉरिशस के फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को, एज वेल एज अटल बिहारी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जिसके थ्रू जो इनके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन्हें पब्लिक पॉलिसी में, गुड गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर जो है ये ट्रेन करेंगे। इसके अलावा बिल्डिंग ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दैट बोथ द कंट्रीज अबाइड बाय, इंडिया विल आल्सो बी सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन मॉरिशस, राइट। तो इन सबको कॉन्डेंस करके मैंने एक टेबल जो है ये क्रिएट कर दिया है जहां पे आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी मेन अथॉरिटीज इन्वॉल्व है एंड क्या मेन अग्रीमेंट का जो है मेन पॉइंट है जिसके लिए ये अग्रीमेंट जो है साइन किए गए हैं। Now, very importantly, what is the larger idea जो कि larger vision जो कि आपको पता होना चाहिए, and that comes with understanding the geopolitical significance of Mauritius as well as the other small island countries in the region. Now, उदय भास्कर यही कहते हैं कि ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, राइट, हम बोलते हैं ना कि एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपकी ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में एक मेजर योगदान देते हैं, राइट। दे कैन ईदर एड स्ट्रेंथ और दे कैन मेक यू अवेयर ऑफ सर्टेन वीकनेसेस जो कि आपने ट्राई करनी है आप निगेट कर सकें वाया योर फॉरेन पॉलिसी। एंड दैट इज वाई इन टुडेज डे एंड एज व्हेन नेवल एंड मैरिटाइम प्राउएस becomes so important, ये आइलैंड कंट्रीज की जो है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई है एंड यू हैव मेजर पावर्स नाउ वाइंग फॉर देम।
एंड हिस्ट्री हमने पहले भी बात की थी, हैज बीन फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स that whenever various countries have vied to become hegemonic powers, one of the ways that they have tried to secure the same is also by investing and controlling various islands in these strategic areas. राइट, तो ब्रिटिश ने बहुत सारे आइलैंड्स को किया था, अभी भी कर रहे हैं. फ्रांस यूनियन आइलैंड्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. यूएस के अंदर आप पॉलिनेशिया का एग्जाम्पल, डिएगो गार्सिया का इंडो पैसिफिक के अंदर एग्जाम्पल जो है, ये सब देख सकते हैं. एंड एक सिमिलर लाइन ऑफ थॉट जो है अगेन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है चाइना ऑल्सो. जिस तरह से वो एक्सपैंड कर रहा है अपने रिलेशनशिप्स को, नॉट जस्ट विथ मेजर आइलैंड कंट्रीज लाइक say Maldives or Sri Lanka, but even the smaller Pacific island countries, right? You see कि जो Pacific की Micronesia, Polynesia की countries थी, they were just seen as, you know, de facto being in the US zone of influence, right? या फिर इनके जो partners हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया. Now these countries have come in for a shock because of the kind of manner in which China इनके साथ proposal sign कर रहा है, इनके साथ जो है अपना रिश्ता बढ़ा रहा है. So when it comes to countries like Palau, Papua New Guinea, Vanuatu, Kiribati Islands, Marshall Islands, right? This has really shaken up these countries, wherein now they've come to realize that, you know, we can't take our position for granted. ठीक है, हम इतनी आसानी से बस बैठ नहीं सकते हैं. Now Harsh Pant also states the same. He says now with this geopolitical churning, you see new kind of changes also happening that India has to be very adept at dealing with. Right? In 2024 only, we see small island countries like Mauritius trying to reassert their territorial and strategic control over their islands. एंड 2024 के अंदर यूके ने अग्री कर दिया कि हम ट्रांसफर कर देंगे द सॉवरेनिटी ऑफ जो चागोस आर्चिपेले जो है बैक टू मॉरिशस, ऑन द कंडीशन क्या कि जो डिएगो गार्सिया है, राइट, जो डिएगो गार्सिया हमने आइलैंड्स देखे थे ना पीछे, हमने मैप में डिएगो गार्सिया देखा था, है ना, यहाँ पे यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है. तो उन्होंने क्या बोला कि आप 99 ईयर्स के लिए हमें लीज आउट कर दीजिए डिएगो गार्सिया का जो अटोल है, और यहाँ पे यूएस एंड यूके अपने मिलिट्री बेसिस बनाए रखेंगे, एंड इन रिटर्न आप चेगोस का जो आर्चिपेलेग जो है वो हमसे ले लीजिए. एंड इंडिया ने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है मॉरिशस के ये जो क्लेम्स है ओवर सॉवरेनिटी ऑफ चेगोस के ये हमारा है, एंड ये ग्रेट पावर्स जो हैं इनको गलत तरीके से कंट्रोल कर रही हैं. राइट, अगेन उदय भास्कर स्टेट्स द सेम दैट व्हाइल अलाइनिंग विद एंड एम्पथाइजिंग विद द गोल्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ कंट्रीज लाइक मॉरिशस, महासागर की विजन जो है लार्जर जो सिक्योरिटी प्रेरोगेटिव्स एंड अदर अरेंजमेंट्स हैं जिसका इंडिया एक हिस्सा है, फॉर एग्जांपल क्वाड, राइट, जो क्वाड है विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान, उसके साथ मिलके जो है इन्हें हार्मोनाइज किया जा सकता है टू इंश्योर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ Indo-Pacific region. On the other side again you have to understand that अब जो है ना गेम सिर्फ ग्रेट पावर्स या मेजर पावर्स के हाथ में नहीं रही है, राइट. तो जब हम बात करते हैं इस इंडियन ओशन रीजन की ही, स्कॉलर्स ऑफन डिवाइड कंट्रीज इनटू बिग ओशन स्टेट्स एंड स्मॉल ओशन स्टेट्स. बिग ओशन स्टेट्स क्या है? अब अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो इंडिया क्या है? एक बिग ओशन स्टेट, एक बड़ी टेरिटोरियल पावर है जो कि इस रीजन में इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, ये बिग ओशन पावर्स हैं. एंड वहीं पे अब स्मॉल ओशन पावर्स भी आ गई हैं जहां पे ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है ये अपनी इंपॉर्टेंस को अब समझ रही हैं, राइट. एंड इनके लिए, राइट, अब हम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर नहीं कोट कर सकते. वाइल दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैनर इन विच चाइना कैन प्ले आउट इट्स पॉलिसीज, सर्टन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज स्टेट दैट हमें कोई एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है चाइना के साथ. It's not like the other countries had always treated as well. Look at the way in which imperialist powers like Britain treated us, or US treated us, or France or Germany treated us. Right? तो हमारे लिए तो अब एक नया proxy आ गया है जिसको हम leverage कर सकते हैं, and we can get certain gains for ourselves. Right? They say China wasn't the one who came and imperialized us, so we have no problem with it. In fact, they say China का आना in the region has almost been like a blessing in disguise. Why? Because suddenly when China wanted to gain its influence, these countries have woken up and realized the importance of these island countries, right? Going back to the same example that 28 साल बाद
an Indian leader bothered to visit island countries like Sri Lanka, Mauritius, and Seychelles. Why? Because now there was the Chinese threat. Similarly, when you look at Pacific Islands के अंदर अब जब various US के dignitaries and leaders visit कर रहे हैं, why? Because of their growing closeness that they're seeing with China and they want to counteract that. So now suddenly जिनको ये ignore कर रहे थे, अब दोबारा उन पे वो रिफोकस करना चाहते हैं. ठीक है ना. विद दिस स्मॉल आइलैंड कंट्री सेज कि हम ये नहीं कर रहे कि हम ग्रेट पावर कंपटीशन में तुम्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खिला रहे हैं. कहते नहीं. इनफैक्ट यू हैव टू लुक एट अस. Right? We are securing our interest that now rather than relying on a single partner, only US or only UK or only India, now we can rely on multiple partners to gain the best, what is the best for our country and our people. Right? Very importantly, because unlike these big ocean states like China, India, US, UK, Australia, small island countries are more vulnerable to non-traditional security threats. क्लाइमेट चेंज की अगर हमने बात कर ली, राइट, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, हम इन्वायरमेंटल थ्रेट्स की इन द रीजन जब हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादा वाल्नरेबल है इन सारी चीज़ों के लिए. राइट. इवन व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, इनके पास तो ज़्यादा कोई मिलिट्री पावर्स है भी नहीं, कोई बड़ी आर्मीज नहीं है, कुछ नहीं है. एंड दैट इज़ वाई इनके लिए जो लार्जर प्लेटफॉर्म्स है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड दैट इज़ वाई दर्शना बरुआ इन हर एनालिसिस इन द कार्नेगी इंडाउमेंट प्रोग्राम, she says that they have also realized how to come together, right, in numbers at these global platforms to be able to put forward their demands, their views, their needs to secure inki security, which is often in the non-traditional realm, to be able to push countries to make way for change. And that is exactly what we might see happening in the near future as well. ठीक है. तो अब और ऐसे कौन से आइलैंड स्टेट्स हैं जो कि इंडिया की इस विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो. राइट. ऑन द एंडिंग नोट, हमारा बैच 1 जो है 2026 का फॉर PSI फाउंडेशन 10th मार्च से जो है इसकी क्लासेस शुरू हुई थी, तो एक हफ्ता हुआ है अभी क्लासेस का. सारी क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में आंसर राइटिंग का एक्सेस है. ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, राइट, रिकॉर्डेड हैं ये. और हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों दे रहे हैं? बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस है एंड ऑफन टाइम्स कई बार बहुत सारी जगह आप देखेंगे पूरा नहीं किया जाता सिलेबस, या फिर क्लासेस मिस आउट हो जाती है. क्यों? क्योंकि कई बार लाइव में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है कि सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस नहीं होता है. राइट. सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू पूरा कंप्लीशन ऑफ स्टैटिक है, प्लस टू ऐड ऑन टू द डायनामिक इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने ये आपको डेमो ही दिया है. दिस इज अ लेक्चर दैट आई हैव मेड फॉर आवर करंट अफेयर्स लेक्चर्स. हर महीने के जो PSI के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं वो एवरी मंथ जो है अपलोड किए जाते हैं, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, अलॉन्ग विथ पूरा फैक्चुअल एनालिसिस, स्कॉलरली एनालिसिस, ताकि दोनों ही चीज़ें आप ऐड कर सके अपने पेपर के अंदर. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, वेदर यू वांट टू गेट योर आंसर्स चेक्ड और not, whether you only want mentorship by me or also by a selected officer, उसके बेसिस पे आप ये प्रोग्राम्स में से कोई एक जो है चुन सकते हैं. इन पे भी एडिशनल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, राइट, अप टू 15% ऑफ. इनको अवेल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसे विजिट कर सकते हैं. राइट. लास्टली, इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर फाउंडेशन बट करंट अफेयर्स इज एन एरिया वे यू आर लैगिंग, आप सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स कोर्स फॉर मेंस 2026 का हिस्सा भी बन सकते हैं, विच इज ओनली प्राइस एट ₹6,000. Jan 2024 से लेके, है ना, मेंस 2026 तक आपको सारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे. This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.